SSP PD and IPS, Assistant Commissioner Development Dr. P. Zara Farhat, overworthy Principal Sir Dr. Hans Izhar, their newly recruited civil servants and dear enthusiastic students. It's our privilege to welcome you all to this distinguished event where we celebrate achievement, inspiration and leadership. I am Farah Fayaz and with me is my co-host Mohsin Fayaz. And together we are honored to host this beautiful program. Where inspiration will meet achievements and hopes will meet destinations. Indeed, today we are not here only to just celebrate the anniversary, the theme that the newly recruited civil servants have qualified this examination, but also we are going to have an interactive session with all those students who have qualified these examinations, and you all will get the chance to ask whatsoever questions you people have regarding the journey. Let's extend our warmest welcome to our esteemed guests and dignitaries who have graced this occasion with their presence. To formally commence today's event, I would like to invite Ms. Wajiza Mushtaq, District Information Officer Pulwama, to deliver welcome address. IPS, distinguished guests, successful candidates of Combined Competitive Exam 2024 and bright young minds present here. It is my distinct honor and privilege to extend a warm welcome to each one of you on behalf of Department of Information and Public Relations, Pulwama. Today, we gather to celebrate, deliberate, and ignite the flame of intellect and inspiration in this assembly. First and foremost, allow me to express our deepest gratitude to our esteemed chief guest, SSP Pulwama, PD Nitya IPS, for magnanimously gracing this occasion. Thank you, ma'am. Your presence, madam, is a testament to your commitment to foster growth and excellence. Amidst your myriad responsibilities, your decision to take out time for us today not only inspires, but also exemplifies the sense of leadership. To our esteemed dignitaries, your presence today adds an unmatched luster to this gathering, for which we are profoundly thankful. Dear successful candidates, congratulations on your remarkable achievement. Your hard work, perseverance, and dedication have set an inspiring example for countless others. And I extend a special word of welcome to the young, spirited students. You are not merely the inheritors of tomorrow, but architects of today. Your energy and aspirations invigorate events like these, ensuring that they become more than mere formalities, but rather transformative experiences. As we embark upon today's proceedings, I hope this platform serves in realization of our collective ambition with conviction, creativity, and clarity of purpose. With that, let us commence this event in the spirit of excellence, dedication, and unwavering commitment to serve the nation and inspire the leaders of tomorrow. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you for setting the perfect tone for this day. अंजाम तो खुदा के हाथ में है, तू आगाज करके तो देख। अंजाम तो खुदा के हाथ में है, तू आगाज करके तो देख। इन भीगे हुए पाँव से जरा परवाज करके तो देख। Ladies and gentlemen, it's rightly said by Allama Iqbal, rahmatullahi alayhi, that the results, the destination, is always in the hands of Almighty Allah. अंजाम तो खुदा के हाथ में है, तू आगाज करके तो देख। See how beautifully he has written this line, that the end is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala, but you at least try, you at least take a step, you at least begin, you at least take an initiative. तू आगाज करके तो देख, इन भीगे हुए पाँव से. Doesn't matter what circumstances, what conditions you are having, because it's life and ups and downs are the part of life. Everyone face ups and downs in their lives. That's why Allama Iqbal says, इन भीगे हुए पाँव से तू परवाज करके तो देख. You try to conquer the world. Ladies and gentlemen, that's what we all should aim for. Now it's time to honor and facilitate the individuals who have qualified AS examination. For that, we request our chief guest, SSP PD Nitya IPS, Dr. P. Zara Farhat, District Information Officer Wajiza Mushtaq, and our worthy principal, Dr. Hans Izhar, to please join the stage and felicitate the young inspirations.
I think the stage is ready for the felicitation ceremony. I again request you everyone to have a big round of applause for all of them. So, ladies and gentlemen, let's begin the felicitation ceremony by having our rank 2. Rank 2 Ikra Farooq on the stage, who has marked her place by being the top of Kashmir. Ikra Farooq, who has marked his place by being a topper of Kashmir. A big round of applause again for Ikra. Congratulations, Ikra. We both congratulate you on behalf of GDC Pulwama. Next, we have Miss Asfiya Javed, rank 8, whose dedication and hard work have brought her here today. Let's welcome her with a round of applause. Next, we have Dr. Tahir Shafi, rank 14. A big round of applause for Tahir. Congratulations, Dr. Tahir. Let's now welcome Muhammad Umar Farooq, rank 19, to the stage. Can we have a round of applause, please? Well done, Umar. Next, we have Well done, Miss Nashra. Now it's my pleasure to invite Miss Yusra Shaukat, rank 29. Please come forward to receive your memento. Congratulations, Yusra. Now next, we have Anta Binti Irshad, rank 33. Please come on the stage. For the moment. Congratulations, Miss Anka. Last but not least, let's call upon Mr. Sajjad Ahmad Noon, rank 52. Congratulations to all of you for your outstanding success. We are incredibly proud of each of you. We look forward to see your contributions in our community. ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर भी, ठुकरा दो अगर दे कोई जिल्लत से समंदर भी, इज्जत से जो मिल जाए वो कतरान काफी है. Ladies and gentlemen, it's now a great privilege to invite our esteemed chief guest, SSPPD Nitya Ma'am IPS. Please join me to invite SSP Ma'am on the stage with a warm round of applause. Respected ADC, ACR, Farhad Saab, Government Boys, GDC Boys College Principal, Haris Saab, GDC Women College Principal, GDC Rajpura College Principal, जो faculty है यहाँ की, और the guests of the this program, all the 8 stars who had been selected into the JKS. Hearty congratulations to you all and all the students who had come, all the faculty members. A very good afternoon. Thank you so much for inviting me here today for this felicitation program. Although it was on the short notice, but I thought ki whatever is the small chance we get to interact with the public, it should be
well used. It should be well, the opportunity should be taken. And I'm thankful for being invited here, and you have allowed me to share my thoughts on this occasion. First of all, a hearty congratulations to all the JKS qualifiers for the year 2024. You all have actually achieved so much even in your personal life. मतलब मैं आपके hardship सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं भी इस प्रोसेस के थ्रू आई हूँ, तो मुझे पता है कि पर्सनल बैटल्स कितनी ज़्यादा होती हैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. तो आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पर्सनली ऑल्सो काफ़ी बैटल्स ओवरकम की है, काफ़ी बैटल्स जीती हैं, और उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम के रूप में, आपके रिज़ल्ट के रूप में आया है. सो salute to your spirit and your hard work, and I hope that once you have started this journey of the civil service, you will be facing very new challenges which you have never seen before. When we are civilian, when हम जब एक अपने छोटी सी दुनिया में रहते हैं, हमारा एक बहुत लिमिटेड स्पेस ऑफ इंटरेक्शन होता है, तब हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है. लेकिन अब आपके आगे जिम्मेदारियां बहुत आएंगी. ट्रेनिंग के बाद जब फिर आप अपना प्रोबेशन करेंगे, आपकी पोस्टिंग्स होगी, यू विल बी पोस्टेड इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, एंड उसमें फिर आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपकी ये जो परसिवियरेंस है आपके अपने स्ट्रगल्स की, वो आपको हेल्प करेंगी वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए. This day has reminded me of my time when जब मैंने एकदम से क्लियर किया था सिविल सर्विस, एंड accordingly I was also felicitated at my school, at my college level. At that time I was not realizing कि एक एग्ज़ाम ही तो क्वालिफाई किया, इतना क्यों इज्जत मिल जाती है, या इतना क्यों लोग सोचते हैं कि कोई बड़ा चीज़ हासिल कर लिया है. But now looking back, 10 years from now, मतलब अब 10 साल हो गए हैं सर्विस में मुझे भी. आई एम 2016 बैच IPS ऑफिसर. सो नाउ आई फील कि दिस इज सो मच ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ थिंग विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर ओन पर्सनल प्रॉब्लम्स और योर ओन पर्सनल स्ट्रगल्स. जो बच्चे आज आए हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और एस्पिरेंट्स हैं हु एक्चुअली वांट टू गो फॉर JKS और UPSC. My three suggestions, or you can say friendly advice, would be there. कैसे prepare करना है, I think that the qualifiers, the toppers would be able to tell you better. I just want to share my journey experience in this preparation of the exam. The civil services examination, be it JKPSC or UPSC, it is very different from your regular examination. जो आपके कॉलेज के या स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं उससे बहुत अलग होता है. कॉलेज और स्कूल में क्या होता था, आपका सिलेबस डिफाइंड होता है, आप वो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो, एंड जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो मोर और लेस आपको पता होता है एटलीस्ट 80% क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कौन सा टॉपिक आप छोड़ के आए हो, कौन से टॉपिक में आपको ऑप्शंस मिलेंगे. तो आप एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में रहते हो. आपको गाइडेंस करने के लिए टीचर्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, ऑब्वियसली इंटरनेट इज देयर नाउ दैट गिव्स यू ऑल आंसर्स. इन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन द सिलेबस इज नॉट कन्फाइंड टू जस्ट सम बुक्स. सिलेबस का जो दायरा है, ऑब्वियसली देयर आर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं जो आप पढ़ेंगे, लेकिन उससे ऊपर आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, आपको करंट अफेयर्स जो हो रहा है वर्ल्ड में, इंडिया में, यू नो, इनसाइड योर कंट्री, अब्रॉड, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू बी एब्रेस्ट, मतलब यू हैव टू नो. सो योर इंटरेस्ट हैज़ टू बी मोर ऑफ अ एनालिटिकल व्यू. ये एग्जामिनेशन कोई स्पेशलिस्ट नहीं ढूंढते हैं. ये एग्जामिनेशन कोई ये नहीं ढूंढ रहा है कि किसको हिस्ट्री में महारत हासिल है, किसको पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा आता है, किसको ज्योग्राफी अच्छा आता है. नहीं, ये एग्जामिनेशन उनको ढूंढ रहा है जो कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं और वो चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं और प्रेशर हैंडल कर सकते हैं. प्रेशर इसलिए क्योंकि आपको सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, प्रिलिमिनरी होने के बाद आपको सब्जेक्टिव मेंस देना होता है, रिटन एग्जामिनेशन है, तो एक पेपर 3 घंटे का है, तो
यूपीएससी में तो खैर 9 पेपर होते हैं, तो उसमें एक दिन में 2 पेपर देना, तो 6 घंटे आपको एग्जाम लिखना है। क्वेश्चन भी आप पहली बार देखोगे, आंसर भी आपको तुरंत प्रिपेयर करना है, एंड यू हैव टू राइट इट डाउन ऑल्सो, एंड इट हैज़ टू बी वेरी ब्रीफ एंड क्रिस्प। यू कैन नॉट राइट एनीथिंग जो आपको लगता है आपको आता है लेकिन क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है। सो ये एग्जाम का जो एक ओरिएंटेशन होता है प्रिपेयर करने का, वो ये है, आप ओपन माइंडेड रहें, आप सब चीज़ पढ़िए और सब चीज़ों को रिलेट करना आपको आना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, सो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और हमारी फाइनेंशियल इकोनॉमी, बैंक इकोनॉमी से कैसे रिलेटेड है वो आपको पता होना चाहिए करने के लिए। अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो उससे जो पेनिट्रेशन है वो कितने लोगों को होगा, उससे फ़ायदा, उससे स्पेंडिंग कैपेसिटी कैसी होगी, फिर इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा और उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करेगा, ये सब चीज़ें फिर आपको करनी है। आपको ये नहीं होना है कि एक टॉपिक आपने रट्टा मार लिया तो उसका आपने डेफिनेशन लिख दिया तो हो गया। सो while approaching this examination, you have to be very open-minded and don't force yourself to be a subject expert. आपको एक जनरलिस्ट होना है, बट आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर इवन इफ आपका बैकग्राउंड आर्ट्स है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या हो रहा है आपको वो भी पता होना चाहिए। इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम द फील्ड ऑफ से मैथ्स, बट यू शुड नो व्हाट इज़ अ क्रिप्टो करेंसी, what is the impact of cryptocurrency, मतलब it is going to be in next say 5 years or 10 years. So आप अपने बैकग्राउंड से बस लिमिटेड नहीं रहेंगे, आपको आपके बैकग्राउंड से बियॉन्ड जाके चीज़ें जाननी है, करनी है। सेकेंड, आई वुड से दिस एग्जाम इज अ टेस्ट ऑफ पेशेंस। पर्सनली बहुत फेलियर्स होंगे। आई रिमेंबर व्हेन आई कुडंट क्लियर द एग्जामिनेशन, आई हैड लेफ्ट माई प्राइवेट जॉब, I resigned from my job and then I went to Delhi for preparation. I couldn't clear in the first attempt and I was not able to clear any examination. I was rejected in all the exams. मतलब इतनी बुरी हालत मैंने अपनी कभी नहीं देखी थी, लेकिन this is how you have to be ready for yourself also कि failures भी आपको मिलेगा, हमेशा सक्सेस नहीं होगा। लेकिन ये परसिवियरेंस इसीलिए मैं बोलूँगी क्योंकि डिस्पाइट फेलियर आप नेक्स्ट डे फिर उठ के फिर से तैयारी करोगे। You cannot put blame on others कि आज या लाइट नहीं थी तो पढ़ नहीं पाई, या फिर आज बगल वाले जगह पे ज़्यादा शोर हो रहा था तो मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन पाया। All these excuses will not help. आपको फेलियर्स मिलेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन इन योर से पर्सनल स्फीयर या प्रोफेशनल, मतलब उसका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन डिस्पाइट दैट आप कितना मेहनत कर सकते हो ये आपके ऊपर है। तो जब अगर आप इस माइंडसेट के साथ रहोगे कि देयर विल बी मैनी पीपल जो हौसला अफजाई नहीं करते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बोलते हैं बहुत टफ एग्जाम है आप नहीं कर सकते हो, दैट्स ट्रू, मैनी पीपल विल से दैट ऑल्सो। शुड यू हैव प्लान बी और नॉट, दैट इज ऑल्सो वन थिंग, बट हाउ मच एफर्ट यू आर पुटिंग इन टू इट, दैट इज द ओनली barometer that will help you to go through this exam. I remember when I failed in my first attempt, मैं बैठ के अपना SWOT एनालिसिस कर रही थी कि मेरी मतलब कमियां क्या हैं, why did not I pass this exam. I cannot blame कि मेरे को दिल्ली का वो खाना ठीक नहीं मिलता है, सब्जी के नाम पे सिर्फ दाल ही मिलती थी तो इसीलिए एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। You cannot give these excuses to yourself. So if you want to clear this exam, you have to know your weaknesses also. आप क्या चीज़ में अच्छे हैं, क्या चीज़ में नहीं है। हो सकता है आपकी रीडिंग स्लो है और आपको टाइम ज़्यादा लगता है और रिविजन आप ज़्यादा जल्दी कर नहीं पाते। यू हैव टू एक्सेप्ट योर वीकनेस एंड देन वर्क ऑन हाउ टू ओवरकम इट। जब आप इस माइंडसेट के साथ करेंगे प्रिपरेशन, तो नो डाउट देन यू विल बी एबल टू गो थ्रू अ राइट ट्रैक। And my third advice will be like, be very honest to yourself. अपने आप से आप हमेशा सच बोलो, अपने आप से वो चीज़ें बोलो जो है। Don't try to have an illusion of yourself. I have seen many people who were very good in academics initially, but that thing that they were always good in academics never helped them to grow in their life. क्योंकि फिर उनको लगता था कि उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है वो हमेशा एक एक्सटर्नल इवेंट के कारण ही होता है।
और इस एग्ज़ाम में लाइक आई सेड ऑब्वियसली द न्यू कैंडिडेट्स कैन टेल यू न्यू ऑफिसर्स कैन टेल यू मच बेटर कि क्या क्या स्टेप्स से आपको गुजरना होगा या क्या क्या आपको तैयारियां करनी होगी। तो जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, आप एक कोई अपने डिल्यूजन में नहीं रहोगे, आपको पता है कि आप ये चीज़ में अच्छे हो तो आपको करना है तो आप कर सकते हो। यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर कॉन्साइंस एंड all these qualities help you being a civil servant. There used to be this, not used to be, it is still there कि ये जो bureaucracy है, red tapeism है, बहुत status quoist है, काम करेंगे तो काम करना है तो rules दिखा देंगे और काम फिर आगे नहीं बढ़ेगा। वो टाइम से अब का टाइम में बहुत changes आए हैं। The accountability, transparency and the pressure to perform, I would say, has gone through a very drastic changes over the last, I think, 20 years, 20 to 30 years. Although we still carry that image, but the accountability factor has increased for a lot of reasons. आप चाहे उसको social media बोल दीजिए, awareness बोल दीजिए, या expectation of people has increased because of the private players that have come also, who are giving very good customer service. सो मैं आपको अमेज़ॉन जब अच्छा कस्टमर सर्विस दे सकता है तो व्हाई नॉट सिविल डिपार्टमेंट जिसका काम ही है लोगों को वो करना, फैसिलिटेट करना। सो ये जो क्वालिटीज़ आपको प्रिपरेशन के टाइम में आप इनकलकेट करते हो, आई विल से इनकलकेट, नोबडी इज बॉर्न विद दिस, वो आपको सर्कमस्टांसेस धीरे धीरे सिखाती है, बट सम बेसिक things which you will be very clear and it will be helping you in the preparation will help you in the service as well, because आगे आने वाले टाइम में सिविल सर्विस में बहुत challenges हैं। आपको परफॉर्मेंस भी रखना है, आपको पैरिटी भी रखनी है, आपको रूल्स के हिसाब से भी चलना है, एंड इट इज़ नॉट जस्ट सीइंग कि सर्विस डिलीवरी हो रही है, सर्विस डिलीवरी इज ऑल्सो सीइंग कि इट इज़ बीइंग डन टाइमली एंड वेरी इफेक्टिवली। So rather, other than having the perks of having a good image in the society and all that, the responsibility factor has increased and over a period of time it will increase more. So ये आपको mentally भी strong बनाती है, जो फिर ये journey रहती है। So giving rest to my address, I would like to once again congratulate all the new officers who have been selected, all the toppers, and also I would request all the students who are present here, if you are planning to give this exam, please do so. एग्ज़ाम देने में, प्रिपरेशन करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं जब ये स्टार्ट कर रही थी, nobody in my family is also from this background, so I also started like a lone person only. तो प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं ज़रूर कीजिए, इसकी जर्नी में ही बहुत मज़ा भी आता है। अगर आप एग्ज़ाम पास भी नहीं करो ना, आपका दिमाग बहुत खुलता है, you will get to know what is happening around you, what is happening in the country, nations, why it is happening, what and why का क्वेश्चन बहुत कुछ आपको क्लियर भी होता है, and it is a very eventful journey, I would say, because the competition is more, there will be a lot of aspirants who would be giving, तो मेहनत और sincerity and hard work is very necessary in this exam. It's not just about intelligence, it is about perseverance. आप कितने देर तक उसको एंड्योर करके वो प्रिपरेशन करेंगे, ये एग्ज़ाम जो है ये उसी चीज़ के लिए होता है। सो आई माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड आई थैंक वंस अगेन इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट एंड कॉलिंग मी हियर। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you for your inspiring words. As ma'am was talking about the failures in life, so yeah, definitely failures are the part of everyone's life, the part of everyone's journey. So मुसलसल जारी है मुझमें ही तामीर मेरी यार, मुसलसल जारी है मुझमें ही तामीर मेरी यार, कहीं से बनता हूँ तो कहीं से रोज दिखा सकता हूँ। With this, we move forward to the second part of this program. We shift our focus to the journey of a civil servant. Now let's warmly welcome Ms. Yusra on the stage. Put your hands together for her.
esteemed dignitaries, the college principals, the faculty members, my fellow colleagues and the audience at large, Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. I am Yusra Shaukat and I secured rank 29th in the recently declared JKS examination. I am pretty sure that by now all of you would be aware about the examination process, the various stages that are involved. Summing to where Ms. Anka had stopped, I would like to share some do's and don'ts which are essential in this examination and the process, whose early realization and acknowledgement would be beneficial for the aspirants. Before starting, I would like to share a personal story with you people. 2020 was the year when I completed my graduation. आप लोगों की ही तरह final year था मेरा, and I had decided upon joining civil services back in my college days. सही सोचा था कि preparation start करेंगे. 2019 was the year, SI November December का time था. I was sitting like you people in one of the gatherings. We had dignified officers there. There was a KPS officer from 11-12 batch. एक बात उन्होंने मेंशन की थी जो which has stayed with me for long. उन्होंने कहा था कि be opportunistic in life. Never think that you have enough time. Again, I am carrying forward that message with you people today. उन्होंने मेंशन किया था कि you people are sitting here means life is being fair with you. अभी आप सब लोग ऐसे किसी फेज से नहीं गुजर रहे होंगे कि आप लोग नहीं कर सकते हैं. Opportunistic रहिए, start from today. ऐसा उन्होंने तब कहा था, तब तो समझ नहीं आया था. But then 2020 जो मैंने सोचा था would be my start was all loaded with ups and downs. COVID year. COVID started. मैंने सोचा था last year of graduation है, इसमें start करेंगे. जनवरी से नवंबर कब पहुंच गया पता ही नहीं चला and I had not touched my books. पूरा साल जाया हो गया था. Something that I would tell you people, start as early as possible for whatever careers you are choosing. 2020 से आज 2024 कब पहुंच गया, time flies. इसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा है ना. You never have enough time. Start as early as you can. So कुछ चीज़ें I would like to share with you people जो इस जर्नी में realize की थी. पहले तो firstly start your preparation only after deep introspections and deliberations if civil services is what you indeed want or what your tilt is. Because we need as productive civil servants as we need teachers or doctors or engineers, artists or for that matter any other professionals. सब चाहिए society को, हर एक professional चाहिए हमें. Then once you are firm, be your own biggest motivator. ये जो journey है बहुत सारे ups and downs से गुजरेगी, more of downs than ups. We all are celebrating our success here today, but we have been epitomes of multiple failures. और हर फेलियर के बाद खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा, खुद को खुद ही उठाना पड़ेगा. That is something you need to take care of. Secondly, there is no such one magic strategy जो आपके साथ कोई टॉपर शेयर करेगा. Listen to as many as topper talks or strategies as you can or want, but in the end make your own custom-made strategy. जो आपकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस, आपके स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पे बनी होगी. कोई टॉपर आपके साथ कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, मैजिक स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर सकता है दैट यू वुड फॉलो एंड मेक इट थ्रू. ऑल्सो कीप योर सोर्सेज एज कंसाइज एज पॉसिबल. ये आप सभी ऑफिसर्स या एस्पिरेंट्स से सुनेंगे. मेक योर ओन नोट्स. नोट मेकिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस जर्नी. इट इज़ द की टू अ सक्सेसफुल आंसर राइटिंग. जब तक आप नोट्स आर्ट ऑफ नोट मेकिंग नहीं सीखेंगे, आंसर राइटिंग वोंट बी अ थिंग. नोट्स अपने कंसाइज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और अपने सोर्सेज बहुत कंसाइज रखें बिकॉज इतने सारे सोर्सेज है बाहर एंड एवरीबॉडी इज रीडिंग द सेम सोर्सेज, बट आप उनको कितने ब्यूटिफुली कंसाइज कर पाते हैं, दैट वुड बी द की जो डिफरेंस बनाता है. एंड देन एक्सेप्ट अ फ्यू लकी वंस, फॉर मोस्ट ऑफ अस it takes more than one attempt. किसी भी फेलियर से सेटबैक मत लीजिए. डोंट थिंक कि आज फेल हो गया. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल, वी पीपल हैव बीन एपिटोम्स ऑफ फेलियर. जब आप प्रीलिम्स से गिरते हो, जब आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचते हो एंड देन यू ड्रॉप फ्रॉम देयर, वहाँ से जो हिम्मत वापस जुटानी पड़ती है ना,
This is something you will have to do on your own. अपने हिम्मत खुद ही जोड़नी पड़ेगी, and that has happened for most of us. काफ़ी जो है गॉसिप्स या र्यूमर्स चलती हैं इन सिविल सर्विसेज मार्केट की, ये वाला ऑप्शनल चला, वो नहीं चलता है, इसमें स्कोर आएगा, उसमें स्कोर नहीं आएगा. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी एज एस्पिरेंट्स आर स्वेड बाय दीज डिबेट्स एंड गॉसिप्स. फॉर द 8 people that are present here, हम सब के ऑप्शनल्स डिफरेंट थे. For all of us it was different. There's no one magic optional that works. बहुत चलते हैं ये debates. As far as I am concerned, I had psychology as my optional, which is one of the unconventional and dicey optionals in this civil services market. And then always be battle ready for this examination. एक चीज़ होती है जैसे अभी भी prelims is once again in a limbo. नहीं पता है कब notification आएगी. हमारे टाइम पे भी prelims, मेंस, इंटरव्यू डिले होते रहते थे, पोस्टपोनमेंट्स आती रहती थी. बट इन नो केस लोअर योर गार्ड, प्रिपरेशन नहीं छोड़नी है. कभी भी अचानक से आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी एंड देन यू विल हैव टू बी इन दैट लूप एंड मार्क दैट एवरी सिंगल मार्क दैट यू विल बी omitting or skipping in the prelims, you will be allowing hundreds of others to get ahead of you. Every half a mark counts in this examination. And in the end, it's about gathering those marks. आपको बाकियों से आगे निकलना है. And every person has worked very hard. एक ऐसा competitive atmosphere है जिसमें सालों साल सबने मेहनत की होती है. Just have to get slightly ahead of others to make it across the line. And then something that I would like to emphasize upon while you are prioritizing your career or studies, never neglect your health. Physical health is a precondition for your mental ability or your mental well-being. काफ़ी टाइम्स ऐसा हो जाता है कि people skip their sleeps या वो अपनी sleep cycle को disturb करते हैं. I would suggest never disturb your circadian rhythms. आपने अगर रात को 1, 2, 3, 4 बजे तक people are studying and then they lose the productivity of the next day. If everything is working well for you people, other responsibilities नहीं हैं, बाकी life circumstances सब ठीक है, please don't disturb your sleep cycles. Last, a human mind is capable of achieving anything that it can dream of. Never let your why I can'ts overshadow or overpower your why I shoulds or why I cans. All the best to each one of you, and I wish and pray that all of you make great strides in life. Thank you. To give an overview about examinations, I would like to invite Anka bin Irshad on the stage for an overview of examination. Please give a big round of applause for Anka. Chief guests, respected dignitaries, our teachers, students, my colleagues, a very good morning to all of you and Assalamu alaikum. I am Anka bin Irshad. I come from Srinagar, Jammu and Kashmir, and I have recently qualified this examination with the rank of 33. I have done my graduation from St. Stephen's College, University of Delhi in political science and economics, and this was my first attempt at this examination, and here we are, alhamdulillah. So I have been asked to give a brief sketch about the pattern of this examination as to how this examination is. I think there is a lot of strategy out there everywhere on the internet. Since all of us live in this space and age where internet is accessible to all, which is a huge privilege, and we must all use it well to make sure that our interests and our dreams all go well with it. So, giving you a very brief information about how this examination is and what the pattern is. Essentially, this is a 3-stage examination, and the exam itself takes a year to complete. And I think sometimes due to some delays and other stuff, more than that. So, if at all you are planning to write this examination, you have to ensure that you have to make your brain essentially, you have to tell your brain that it is going to take quite some time to make it through the examination, because the process in itself is quite cumbersome, because 1 year is a lot of time and there are 3 stages, and in every stage there is an elimination process essentially, because
The 3 stages would be prelims, followed by mains, and then interview. So if you are qualifying prelims, then you would be able to write mains, and if you are making it through in the mains also, then it would be the interview, which would be the last stage. Before you get into the examination cycle, I mean before you write the examination itself, it needs preparation. And preparation has to be there for at least a year, because the syllabus in itself is so cumbersome and so huge. It's not difficult. The syllabus is not difficult. It's very basic. These are very basic things that we mostly read in our schools and in our colleges. But the examination and the competition is such, because the number of people who appear in this examination and the number of seats that we have, the proportion is such that it becomes a little difficult and dicey for each one of us to make it through. So make your choices well, make informed decisions, research well as to what your aspirations are. Why do you want to get into the services? It's the first question. So firstly, that I would want to advise all of you, if you're planning to write this examination, read the syllabus. Have a thorough explanation and have a thorough reading of your syllabus, and make sure that you know each and every element that is there in the syllabus. Once you are well versed with the syllabus, then you go to the book list. Make a concise book list of yours. Once you're done with making a book list, stick to it. Do not go here and there, because there's a lot of stuff, lot of information, lot of resources that are out there on internet, on Telegram, and each social media platform. We get to swayed away. We get to be swayed away by a lot of things, because we are all humans, and by default, the human nature, we have that element of FOMO, fear of missing out, that somebody else, my peer who's preparing with me, might be reading this resource, and I am not reading this, so maybe there would be a question which would be from this resource. The only suggestion that I would want to give you all is make your book list concise, stick to it. There are standard resources that you need to stick to. You stick to them, you make notes out of them, and then you revise them again and again, and then enhance them with the PYQs. Because PYQs plus the syllabus is something that you have to do. There is one thing that one of the teachers usually say, Atish Mathur, if somebody is preparing from here, they might be knowing him. So he says this is a sarkari examination, ye sarkari imtihan hai, sarkari tarike se nikalo. So the thing is, it is a government examination, there is a framework, there is a syllabus, you stick to the syllabus, you re-engineer it with the previous year questions. You have to check from the PYQs. If I have studied something, if I have studied, say for example, Lakshmi Kant for polity, am I able to do it? And how would you know if I have absorbed well? It would be only when you would re-engineer it. You do the PYQs and you see if there is a gap that needs to be filled. We have seen a trend in JK combined competitive examination from last few years. The trend and the pattern of the questions is on the UPSC lines, and the syllabus is same. The overlap in the syllabus is entirely there. So you prepare for UPSC, you do the UPSC's PYQs. Do them well. Go to, I would say 10-15 years ke PYQs karke jao. It is a good exercise, it's a good practice, it's better than any other test series or anywhere, all the things that are out there, because PYQs will give you an image as to what the examiner is thinking when he is curating the question paper. So make these two things, PYQs and syllabus, a cornerstone of your preparation. Then if we talk about the syllabus briefly, prelims ka syllabus is a little dicey, in a sense that they haven't given any detailed overview about the syllabus. However, the main syllabus is very, very detailed. So make sure you stick to the mains wala syllabus. So, because they are there in the syllabus. The first one being Indian polity. There is the theme is polity and governance. Polity and governance you have to do. And now you choose your resource. It could be Indian polity by Lakshmi Kant. It could be reading bare acts from the constitution directly, or any other resource that you want to stick to. Then there is economics. Economics is again very, very important, and you have to read Indian economy for this examination.
You can stick to any resource. You choose it for yourself. There is Ramesh Singh is there. We have Mrunal Patel's notes. There are Shri Ram IAS notes. They are all there in the market available. You can download them for free in the soft copy version of them and read them. The thing is, the key tip here is that you read them. In the first reading, you would not be able to grasp anything because it's very difficult. Because all of us come from very diverse backgrounds wherein we do not know the technicalities, the language of the subject. So we have to make sure that we read them twice, thrice, as many as times you are able to, augur well with the subject. You are able to imbibe in you all that linguistics and the language that each subject has to offer. So you read them, you make notes out of them, and then you equip yourself with the PYQs, and then you're done. After that, we have Science and Tech. Science and Tech is a very current and contemporary subject. So you have to do it from the current affairs. Wherever you find the current affairs, any new development, any new technological advancement that happens in the science, there is this one editorial that comes in the Hindu every day, which is there. So you can read them, and mostly there are questions that they ask from that portion because they usually deal with the new developments in different domains that are happening in the science. After Tamil Nadu NCRTs, or you can just read any NCRTs. For modern, you have to do Spectrum. You have to read it so many times. It's so factual that if you were to ask me any question from that at this point of time, I would not be able to answer even one. It's as honest as I could be. So you have to do it. It's factual because facts are something that just, they evaporate from our minds sometimes. Then talking about geography, we have to read the NCRTs from 6 to 12. They are very, very beautifully written, very lucid. You have to, if you feel that you need to enhance them, you have to do the value addition, you can do that, but make them your basic resource. And I think that would be it for the main subjects. Other than that, there are current affairs that you would have to read. You have to read the newspaper. You have to choose a single newspaper that you would read every day for you. And I think newspaper reading is something that each one of us should be habituated with because newspapers are actually, the eyes and ears of the world, and we can have the information about what is happening around us. And that is actually a very important thing to be an informed citizen, right? Each one of us should be an informed citizen, whether or not you are preparing for civils. And if talking precisely about the civil services preparation, we can talk about the current affairs. And for that, you have to choose one thing. Either you make your notes from the newspaper regularly, or you couple it with the monthly magazine that comes from different institutions of civil services. You can choose one for yourself, revise them, make notes, and you have to revise a lot of times. Essentially, that is what I'm trying to say, because there are a lot of things that you have to remember. There is a factor of memory that counts in here. So be sure you do that, and I think that's it. Have a very clear why are you choosing it. Make sure that you know what it takes to have for the examination. And there are not some very difficult or some very complicated things that are required out of you. A very mundane person like me and like a very normal person can qualify this examination, provided that you have patience, you want to have that perseverance, and that element of dedication that you want to dedicate some amount of your prime years to this examination. So do well, and if you want to do something else, you can do that too, because we live in a globalized world and there are multiple avenues wherein you can make a lot of money, wherein you can have a lot of fame, money, everything, exposure. So choose it well, make informed decision, and I wish you all the very best. Thank you very much. Thank you, Yusra. Please be seated for the upcoming interaction session. Now we will be opening free floor to questions from our students. Please feel free to ask any kind of questions regarding this examination. For that, I would like to invite all the 8 young inspirations to hit the stage. All the young 8 inspirations, all the young officers to hit the stage. I request the technical team to give mics to the students and to the audience. Please feel free to ask any kind of questions.
without any coaching. Without any coaching. How can he crack examinations without doing coaching? लेकिन एक भी बंदा के साथ इस डिस्ट्रिक्ट से नहीं हुआ। लास्ट ईयर ओनली वन रेस्पोंस गॉट है, ठीक है? यहाँ सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स निकलते हैं, सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स निकलते हैं, लेकिन अगर आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आई एम वेरी श्योर यू पीपल विल try to get the civil services, you try to start preparing trust. ये सबसे ज़्यादा जरूरत है। अब यही आपकी बात सवाल की दो, लेकिन हर कोई प्रिविलेज नहीं होता कि वो जाएगा कोचिंग, ठीक है? और एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि ये जानता है कि ये बच्चा खुद मेहनत करे। आप कितने इंटेलिजेंट हो, आप कितनी चीजों को खुद एनालाइज कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। डिफाइंड रिसोर्सेज है जो हर जगह आपको मिलेंगे, ये वाले रिसोर्सेज, लेकिन उन रिसोर्सेज में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है, कौन सी बुक्स में, अगर आप सपोज 10वीं साल की बात करते हो 800 पेज की बुक है और ट्रस्ट मी नेट में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, खाली प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 800 पेज की बुक में खाली 300 या 400 पेज है जो पढ़ने लायक है। You don't have to read every book from cover to cover. आप एक बार बैठे, पहले प्रिपरेशन करने से पहले हर कोई जानता है कि किताब खरीदी और पढ़ेगा। Before you develop the preparation, trust me, 8 से 10 दिन ये आप अपने एक बार देखिए कि आप पहला कि आप करना क्यों चाहते हैं, वही want to be a servant, पहली बात। दूसरी बात कि पिछले 10 साल में 40 years से आप ये कैसे पूछे थे जो आपका सिलेबस है उसको देखिए, सिलेबस को पहले याद करके देखो, 2-3 बार देखिए, फिर सिलेबस की हर किसी लाइफ पे नए क्वेश्चन कैसे जो सिलेबस हो या मेंस हो, एक बार हर टॉपिक के नीचे देख लीजिए। अब देखिए इतना टाइम नहीं आप लोगों के पास, आई हैव अ फाइल कुछ मैंने उसका खुद ऐड किया है, कुछ हमने ग्रुप में बनाई है, आई क्लियर दैट फाइल, उससे आपको ये समझ आएगा ये चीजें हैं जो एग्जाम में जाती हैं और ये चीजें हैं ये क्या है जो बयान नहीं। और दूसरी बात आप एक क्वेश्चन सिलेबस को देखेंगे ना तो बड़े अच्छे से देखिए ये इतना सिलेबस है, फिर आप ये देख लीजिए कि प्रीलिम्स में इस सब्जेक्ट में किस किस एरिया से क्वेश्चन आया। आई विल गिव एन एग्जांपल, यूपीएससी में आज तक 15 से 20 बार क्वेश्चन पूछा होगा बुद्धिज्म पे, ठीक है? जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर है, हर साल क्वेश्चन 4 या 5 थीम्स पे पूछे गए हैं। या तो प्रीलिम्स में बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो जैनिज्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो विजयनगरा के आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जब आप मेंस की बात करते हो, मेंस पे या तो आर्किटेक्चर पे पूछेंगे, या तो आर्ट पे पूछेंगे, या तो लिटरेचर पे पूछेंगे। देखिए आपको एग्जाम को समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ द एग्जाम, इट्स वेरी एसेंशियल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको ग्रिप आएगी ना एग्जाम पे, आपको ये भी एनालाइज होगा कि 10 सब्जेक्ट्स हैं। सपोज हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से पिछले 4 सालों में से या 6 सालों में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट वर्ल्ड हिस्ट्री गेट्स द वन क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री गेट्स रिपीटेड आफ्टर एवरी 2 इयर्स। अगर आप चीजों को एनालाइज अच्छे से करना प्रॉपर्ली तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट थ्रू। क्योंकि यहाँ सबसे प्रॉब्लम क्या रहता है, गाइडेंस का। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं लेकिन पता नहीं होता है करना क्या है। अगर एक वेल डायरेक्टेड स्ट्रेटजी होगी, आपको पता होगा हाँ ये चीजें है, प्रीलिम्स में ये चीजें पढ़नी है, इन सोर्सेज से ये चीजें करनी है, मेंस में ये नोट बनाने हैं। और एक बारी जो टॉपर्स हैं, आप सपोज किसी का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है, आप एक बार देख लीजिए कि इस साल के टॉपर कौन कौन सा आया है। इस साल का टॉपर कौन, हेलो, इस साल का टॉपर कौन कौन आया, और उस ऑप्शनल में देख लीजिए इसने आंसर राइटिंग जब की है तो इसने कैसे आंसर फ्रेम किए हैं। थोड़ा सा जो मैंने भी शायद किसी ने कहा था कि एकेडमिक्स और सिविल सर्विस में क्या फर्क है। एकेडमिक्स में हम लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखते हैं, मतलब बड़े बड़े पैराग्राफ लिखे, अच्छा सा लिखा, लेकिन सिविल सर्विस में जब आप लिखते हो तो बड़ा शॉर्ट लिखना पड़ता है, बहुत कम साइज लिखना पड़ता है, आपको मैप्स इंट्रोड्यूस करने, उसमें आप डायग्राम्स ऐड करते हो। तो ये चीज है ना, जब आप अपना ऑप्शन लेते हो, एक टॉपर का देख लिया इसने ऐसे आंसर राइटिंग की है, इसके नोट ऐसे, तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है।
देखिए रिलायबिलिटी अगर कोचिंग इंडस्ट्री आईएएस और केएस बनाता, मुझे लगता है हर साल दिल्ली में राजेंद्र नगर में रहा हूं, ट्रस्ट मी आई वेंट टू अ कोचिंग सेंटर, फीस दे दी, 2 महीने के बाद वहां से भाग गया। रीजन वाज दैट क्योंकि वो आपको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि आप उनके बगैर नहीं कर सकते हो, बट आप में इतनी कैपेबिलिटीज है कि आप आराम से कर सकते हो। बस आपको बस ये बात की जरूरत है कि आपको पता होना चाहिए ऐसे करना है। एंड आई एम हियर, इतने सारे लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया है, इफ एनीवन हैज एनी डाउट रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, he can contact any time. I am very sure that मतलब फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा इतने सारे सिविल सर्वेंट होंगे कि जहां नजर पड़ेगी एक तो जरूर पुलवामा का होगा। थैंक यू। Questions, please. From the inner core of my heart and mighty congratulations. I want to tell you that what was the most difficult actually is part of this exam. Was it prelim, mains or interview? And what was the significant sacrifice you had to make for your journey? She want to ask the most. I think you cannot specifically say कि एक particular stage is very difficult. Prelims is equally challenging, mains भी challenging होता है, and interview stage is equally challenging. As well as आपकी जो preparation है, that is integrated for prelims, mains as well as interview. There is no segregation between the stages. Also एक important चीज़ ये है कि आप अभी सारे graduation pursue कर रहे हैं. I think nobody here is a graduate. You still are pursuing the graduation. So अभी मुझे लगता है rather than focusing कि आगे क्या होगा, you should more focus आपके अभी subjects क्या हैं, how can you perform well in your academics, and उसके बाद आप उसको integrate करें civil services preparation के साथ. For example, right now आपको क्या करना है, आपको newspapers, you should integrate newspapers in your studies. You should see आपको optional कौन सा choose करना है and accordingly उसको अपने subject के साथ align करें. So don't think कि prelims हो जाएगा, अगर हो भी जाता है, there are lot of students who have been mastering the prelims, but that is of no point. अगर आप prelims qualify कर रहे भी हैं, subsequent attempts में आपकी answer writing सही नहीं है, तो that is वो उसका कोई point नहीं है. You have to be prelims भी आपको qualify करना है, आपको mains भी qualify करना है. You have to be interview prepared also. And for that आपको एक integrated strategy रखनी है for all the 3 stages. Thank you. If you have Hello? Going to now is the procrastination. So I would like to listen how we can overcome such issues. He wants to say the issue of procrastination, the delaying, like It has become a deadly disease right now. So we delay every time. exactly procrastination. So for this, I would be giving you a humble suggestion. Go for a self-introspection. At the end of the day, analyze what is that activity that is consuming your day. Maybe it may be your surfing internet, or you may be listening to music for some extended hours, or any other thing. But you'll have to analyze yourself, and if you have took a stand, and if you have chosen a goal and aim to work on, you will have to regulate these things around. You'll have to self-introspect, self-analyze. You'll have to trim the negativities, the things that are consuming your day. You'll have to trim that down. And when you made a goal, when you are making an aim to work on, make a plan and stick to that. That is what we have done, and that is why we are here. So overcome these things, and that is only up to you, because you are the only person who can change your life. So we are not going to change your life. It is you who has to take a stand, who has to work on your goal, on your aim, and will have to regulate your activities and stick on your plan to achieve whatever you want. Okay? Congratulations. Thank you. Actually, I have 2 questions. A situation where actually, अगर for example कोई student है, most of us from medical background, और कभी नहीं होता हमारा qualified needs वगैरह जो हम करते हैं, तो हमारा कभी हम drop नहीं लेते 1 साल 2 साल, तो फिर हमारे parents के mind में भी doubt आता है कि शायद नहीं होगा, but फिर IAS नहीं होगा या KS नहीं होगा, यूपीएससी में आप नहीं होंगे, तो आप kind of age का concern आता है, especially for a girl. उसको बोलते आप बड़ी हो जाओगी,
शादी होगी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि for a student who has already seen failure such as your job वगैरह हो, तो वो कैसे इससे टैकल करे कि जो उसको क्वेश्चन पूछे कि बहुत इनफॉर्मेटिव होगा। तो इससे एक तो मेरा ये क्वेश्चन है। सेकंड पहले आप एक सुनिए, एक आंसर इसके बारे में पूछो। यही कि नहीं हो रहा है, जो सब हो रहा है, तो मैं अपनी स्टोरी आपको बता दूं पूरी डिटेल में। आई ग्रेजुएटेड इन 2012, 2014 आई गॉट मैरिड और 2016 से आई स्टार्टेड, जिसको कहेंगे सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस, जिसको मैंने बैठ के एक जगह खुद को बंद करके पढ़ना। और 2024 तक मैंने 4 एग्जाम्स दिए, और चारों बार इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची। 3 बार मैंने इंटरव्यू में जो है फेलियर फेस किया है। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि 2 चीजें जो इस चीज के इस एग्जाम नहीं, किसी भी पैशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, पहली तो आपकी डेडिकेशन। और डेडिकेशन ये कि आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी किसी पर्टिकुलर पैशन के लिए इन्वेस्ट करें, लेकिन साथ ही साथ आपको आपका रीजन पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। आपका रीजन ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं, आपका रीजन ये नहीं होना चाहिए कि आपने फ्रेंड सर्कल में अपनी टॉर बढ़ानी है, आपका रीजन ये नहीं होना चाहिए कि आपको ग्लोरी चाहिए, आपका रीजन ये नहीं होना चाहिए कि आपको मीडिया में आना है, आपका रीजन ये होना चाहिए कि आई वांट इट। और अगर आप वो कर रहे हैं, आई हैव इन्वेस्टेड 10 years ऑफ माई लाइफ इन दिस एग्जामिनेशन, तो वो इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी चीज याद आती है कि सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। नेगेटिविटी की जगह नहीं है इस सब चीज में। अगर आप कोई चीज चाह रहे हैं तो नेगेटिविटी को अवॉइड कीजिए, यही जो क्या पता होगा या नहीं होगा। आप प्लान बी रखिए, अगर आपका लग रहा है कि इसमें नहीं है चांस मेरा उतना ज्यादा, या हो सकता है कि ओवर एज हो जाऊंगी, या जो भी, प्लान बी रखिए। फॉर मी माई प्लान बी वॉज, अगर मेरा सिविल सर्विसेज नहीं होगा तो आई वुड बी अ होम मेकर। तो पैशन को फॉलो करने के लिए आपको किसी के बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हाँ तुम्हें ये करना है और इसलिए करना है। अगर आप उस रीजन से है ना कि कोई आपको कह रहा है कि आपने ये करना है, तो आप गलत रीजन से अपने पैशन को फॉलो कर रही हैं। आपका रीजन ये होना चाहिए कि यू वांट इट, बस इतना होना चाहिए। So definitely it does not matter that to which background you belong or जो भी conditions, जो भी circumstances आपकी लाइफ में है, so they don't just matter। एक चीज मैं आपसे ऐड करना चाहूंगा इसमें, आप बोल रहे थे कि आपका मेडिकल एंट्रेंस में नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि यार, और आपका मुझे नहीं पता कितने नंबर से छोटा था, मेरे 2 नंबर से छोटा था। तो रही बात 19 से तैयारी कर रहा हूं मैं, 17 बार मैं एग्जाम में फेल हुआ हूं, ठीक है। इट डज नॉट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फेल, जस्ट इट मैटर्स दैट यू आर देयर एंड यू विल मेक इट सम टाइम। अब ये मेडिकल एंट्रेंस में बात करूं, 12th के बाद हर कोई एंट्रेंस देता है, डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का। मैंने भी इसीलिए दिया था क्योंकि हर कोई दे रहा था। तो मेरा जो ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग में है, तो आई वॉज क्लियरली नॉट सेटिस्फाइड विद द फील्ड आई हैव चोजन। तो ये कोई ये नहीं है, फेलियर जो स्टेजेस होते हैं लाइफ के, फेलियर से ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे लाइफ रुक जानी चाहिए, आप उनको स्टेजेस मान के चलिए। जहां जहां ट्राई कर रहे हैं आप उसमें, मतलब ये नहीं हो रहा है नीट, आप ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन के बाद दोबारा दे सकते हैं, निकल गया तो निकल गया, आप अगले मरहले के लिए ट्राई कीजिए। तो ऑल द बेस्ट सबको अपने अपने पैशन के लिए। I would like to ask that just we were talking about the failures right now, and I too have been through some failures in my personal life. And how do you gather the courage to go from one failure to another in your life? And how do you like confine yourself on again and start with a positive basis? To everyone, मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, जो आप लोगों के सामने ये लोग बैठे हैं, they are one of the finest brains in our UT। पहले मैं जो इन लोगों ने जवाब दिए उससे बेहतर हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ मैं एडिशन कर सकता हूँ।
एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि हम जम्मू एंड कश्मीर अगर हमें कोचिंग नहीं कर रही है तो कैसे हम करें। एक स्कीम आती है जम्मू एंड कश्मीर में, परवाज। आप वहाँ पे एंट्रेंस दे सकते हो विदाउट एनी कोचिंग फीस। आप वहाँ से कोचिंग ले सकते हो, एक गाइडेंस ले सकते हो, दैट इज़ सफिशेंट। और फिर आपको खुद मेहनत करनी है। उसके बगैर अगर आपको दिल्ली जाने की ख्वाहिश है तो आप हमदर्द स्टडी सर्कल में NCERT सिंपल पढ़ के वहाँ पे एंट्रेंस दे सकते हो। वो आपको गाइड करेगी UPSC के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी ऐसे प्रोग्राम्स करती है और जामिया मिलिया इस्लामिया भी ऐसे प्रोग्राम्स करती है। तो बहुत सारे एवेन्यूज़ है उन बच्चों के लिए। मैं भी स्पेशली एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैंने भी कोई कोचिंग नहीं ली है, लेकिन मैं हमदर्द स्टडी सर्कल खुद गया, मैंने वहाँ से किया, मैंने वहाँ एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे। वो बहुत अच्छा एक डायरेक्शन देते हैं। उन बच्चों के लिए मैं खासकर बोलता हूँ जिनको फाइनेंशियल कंडीशंस वीक है, क्योंकि आई नो दिस डिस्ट्रिक्ट एंड मैं आप लोगों का हमसाया डिस्ट्रिक्ट से, अनंतनाग से, और हम रूरल सेटिंग से आते हैं। ज़्यादातर हमें ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते। तो आपके ड्रीम्स में कोई मतलब बैरियर नहीं आना चाहिए, वो स्पेशली फाइनेंशियल प्रॉब्लम। आजकल के लोग एक ओपन माइंडेड है। सर हमारे टीचर्स हो, कॉलेज हो, कोई भी इंसान हो, आपको मदद करेगा अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो। दूसरी बात, एक बहन ने क्वेश्चन पूछा था कि हम किस तरह मतलब एक ये फील्ड चूज करेंगे जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल। मैं लिटरली एक बात बोलूँगा, मैं इस जर्नी में सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम हुई होगी तो वो मुझे हुई होगी। लेकिन जब भी मैं इस अपने बहन नशरा को देखता हूँ तो बस मुझे एक ही बात याद आती है कि अगर मैं आज सिविल सर्वेंट नहीं बनता। मुझे क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि अगर आप सिविल सर्वेंट मानो सिलेक्ट नहीं हो तो आप क्या करोगे। मैंने जवाब दिया मैं फिर से सिविल सर्वेंट बन जाऊँगा। उसने बोला कैसे। मैंने बोला सर फिर भी मैं सर ये मेरा ख्वाब है, मुझे बनना है। तो जब उसने 3 बार बोला, उसने बोला वहाँ से आप अपने दिमाग से काम लो, आप मानो कि आपकी एज खत्म होगा, आपके अटेम्प्ट्स खत्म हो, तो कैसे। मैंने फिर से बोला मैं सिविल सर्वेंट बन जाऊँगा। तो उसने बोला कैसे। मैंने बोला मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वन डे एंड विल टॉप ब्यूरोक्रेट। आप लोगों को कभी भी अपने ख्वाब नहीं छोड़ने चाहिए। मैंने एक ही बार में ज़्यादा हमारे घर में आज तक बचपन से हमें टीवी नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन से टीवी का हमने टीवी कभी नहीं देखा। मैं फैक्ट कहता हूँ, हर जगह जहाँ पे जाता हूँ, जिंदगी को प्रैक्टिकली जीना स्टार्ट करो। आपको जो भी करना है उस ख्वाब को दिल में रखो, उसके लिए मेहनत करो। मैंने एक बार सुना था, ये सुना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहता था तो उसकी शायद रैंक 11 आई थी। तो जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना तो उसने पहले जो एयर चीफ है उसको बोला मुझे मिग चलाना सिखाओ, एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट। उसने मिग भी उड़ाई है। तो अपने ख्वाबों को कभी मत छोड़ो। आप इन ख्वाबों को बस एक मॉनेटरी बेनिफिट के लिए नहीं, बस अपनी सोसाइटी को हेल्प करने के लिए। अगर आपके दिल में ये है कि हम कल अपनी सोसाइटी की एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, हम एग्रीकल्चर सिस्टम इसको बढ़ाना चाहते, हम अपने किसानों को, हम अपने वुमेन्स को, उनको एम्पावर करने की कोशिश करें। अगर आपके दिल में ये है तो आप प्लीज इस फील्ड से ज्यादा, और इस डिस्ट्रिक्ट ने बहुत कुछ देखा है। इस डिस्ट्रिक्ट मैंने इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ पढ़ा है, उठा हूँ, बैठा हूँ। They are one of the finest brains, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जीनियस लोग हैं। लेकिन आप लोगों को एक कोशिश करनी है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप हर फील्ड में जिसको जो पसंद है, किसी को डॉक्टर बनना था उसने चूज किया, वो आप लोगों को जो भी बनना है, लेकिन आप कोशिश करो इस डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा हम सिविल सर्वेंट्स ज्यादा से ज्यादा इस डिस्ट्रिक्ट से भी, और ओवरऑल जो रेशो हमें कश्मीर, स्पेशली कश्मीर डिवीजन में हमें ज्यादा से ज्यादा सिविल सर्विसेज में आना चाहिए, क्योंकि हमें एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए जहां पे हम लोगों को सर्व करें, हम उनके सर्वेंट्स बन जाए। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात है, आप आज से करना चाहते हो, लेकिन मैं देखिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, गो आफ्टर 12th।
12th तक आप किसी भी सब्जेक्ट में ना, आप मेडिकल लेना चाहो, आर्ट्स लेना चाहो, थोड़ा लाइफ को भी एंजॉय करो, एक्सप्लोर करो और पढ़ाई भी करो। 12th के बाद आपके पास ग्रेजुएशन के 3 साल हैं और 1-2 साल तक वो ग्रेजुएशन के 3 साल और 1-1.5 साल आप फिर फुल्ली प्रिपरेशन में आप IAS बन जाएंगे। आज से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बारी आपका इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विद नेम एंड आपने सब्जेक्ट्स कौन से ले लिए थे एज ऑप्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। So my question, why we can prepare for any examination productively? What are these strategies? First, introduce and then. Tahir Shibi Bhatt, and this was my 3rd attempt, and I have got secured rank 14. My option was veterinary science and animal husbandry. अब आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा मैं। आगे बढ़ते जाएं। अच्छा, माय नेम इज सजाद अहमद लोन। मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे प्रीलिम्स भी नहीं हुआ। मैंने जैसे बहुत स्कोर किया था लेकिन सी सेट रह गया, इसलिए यहाँ हर कोई चीज़, हर कोई एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। मेरा ऑप्शनल था zoology। माय नेम इज़ अनका बिन्त इरशाद। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था इस एग्जामिनेशन में। मैंने अपनी ग्रेजुएशन, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किए। तो मेरा जो सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन का वो पॉलिटिकल साइंस था और ऑप्शनल भी मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ही था इस एग्जाम में। मेरा नाम नशरा बतूल है, मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हूँ। मेरा रैंक 20th था। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का रहा है और इस एग्जामिनेशन के लिए मेरा सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। मेरा नाम इकरा फारूक है, मैं श्रीनगर से हूँ और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। मेरी जो रैंक है इसमें सेकेंड आई है दिस ईयर और मैंने स्कॉट से अपना BSc और MSc कंप्लीट किया है 2021 में और मेरा ऑप्शनल भी एग्रीकल्चर ही है। मेरा नाम आफिया जावेद है। इस एग्ज़ाम में मेरा 8th रैंक था। मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था। दिस वाज माय 4th अटेम्प्ट और पिछले 3 अटेम्प्ट्स में आई अपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू और फाइनली 4th अटेम्प्ट में हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा शौकत है। मैंने 29th रैंक सिक्योर की। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट और 2nd इंटरव्यू था। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2020 में ख़त्म की थी। एंड समवन हैड आस्क्ड अबाउट कोचिंग। सो मोस्ट ऑफ अस प्रेजेंट हियर हैव नॉट बीन टू एनी कोचिंग। मैंने कभी कोचिंग नहीं ली है। 10th 12th में एक नॉर्म बनता है कोचिंग ज्वाइन करने का। मैं हमेशा से सेल्फ स्टडिंग पर्सन ही रही हूँ। Some of us were part of various RCAs. Other than that, most of us have never been to any coaching. आपका क्वेश्चन था ना कि किसी भी एग्जाम के लिए, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में जाने के लिए इससे पहले, क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, मतलब मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ICR का दिया है, मैंने प्रोबेशनरी ऑफिसर NABARD का दिया है, मैंने वेटनरी असिस्टेंट सर्जन का एग्जाम दिया है, मैंने UPSC का दिया है 4 बार, JKPSC पे 3 बार दिया है। मैंने EPFO दिया है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, मैं 3 नंबर से रहा था वहाँ पे। ठीक, मैं एक बात बताना चाहूँगा, जिस भी एग्जाम में जाते हो पहले आप उसके बारे में जान लीजिए 4 दिन 5 दिन 10 दिन कि इस एग्जाम में पैटर्न कैसा है, स्टेज कौन सा है, किस स्टेज को आप हर स्टेज को अलग अलग से इवेलुएट कीजिए कि किस, अगर सिलेबस है, किस सिलेबस के किस एरिया को किस डेप्थ में पूछा गया है, और जो बाकी एरिया यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रायोरिटी एरिया एंड नॉन प्रायोरिटी एरिया। इस प्रायोरिटी एरिया को आप अच्छे से देख लीजिए कि किस डेप्थ में पूछ रहे हैं। जो नॉन प्रायोरिटी एरिया है उसको सुपरफिशियल लेवल पे देख लीजिए और आप ये देख लीजिए कि किस कंपोनेंट से इन सालों में कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उस हिसाब से अपने सोर्सेज, मैं जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल बोलूंगा, न्यू एनसीईआरटी थीम्स आती है हिस्ट्री में, 1 या 2 दिन लगेंगे पढ़ने में, ठीक है। पिछले 3 साल से JKPSC में जितने क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हिस्ट्री में 15 सारे उसी से हैं। और अजीब बात यह है कि द आयरनी इज दैट उन क्वेश्चंस में से कोई ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं है।
तो अगर आप इन चीजों को देख रहे हो ना, ये आपको डिलिनेट करना है कि आपका सोर्स कौन सा है और उस सोर्स में कितनी डेप्थ है, किस टॉपिक में कितनी डेप्थ है। बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का क्वेश्चन हमेशा इतनी डेप्थ में आता, आप उसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। अब गुप्ता से बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, उसको बेसिक लेवल का पढ़ लीजिए, तो आप एक बार ना एग्जाम को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर दे। उसके लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। जो भी एग्जाम है, एसएसबी का है, पीएससी का है, यूपीए, एवरी एग्जाम, ये हर किसी में अप्लाई होता है। And how you stay motivated? I think essential as success in this examination or in this process. I would say setbacks हम सब फेस करते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एग्जामिनेशन सेंट्रिक setbacks हो. There are setbacks that you face even in your personal lives. हम सब इंसान हैं, हर इंसान के साथ एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और हम सब उनको डिफरेंट तरीकों से नेविगेट करते हैं। फिर वही बात आ जाती है जैसा कि इन सब ने बोला कि अगर आपके पास वो इंटरनल मोटिवेशन है, आपके पास वो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि क्यों मैं ये एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहता हूँ, क्या मकसद है इसके पीछे, क्यों करना चाहता हूँ। इफ यू हैव इट क्लियर व्हाई इन यू, देन यू वुड नॉट नीड द एक्सटर्नल बाउट ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि बाहर से आपको कोई मोटिवेट करेगा। आज मैं बोल रही हूँ, कुछ मेरे कलीग्स कुछ बोल रहे हैं, तो ये वाली जो मोटिवेशन है काफी सुपरफिशियल है। इट विल लास्ट फॉर अ कपल ऑफ डेज, मे बी अ वीक, बट इट कैनॉट सस्टेन थ्रू आउट योर प्रिपरेशन. So to sustain the entire preparation, you have to make sure that you have that internal motivation. आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाहता हूँ. रही बात आपके सेकेंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जो आपने बोला कि फिर आप क्या करते थे, मतलब कैसे खुद को ट्रैक पे वापस आते थे. हमेशा सेल्फ डाउट होता है, हम हर स्टेज पे सेल्फ डाउट होता है. कितना भी अच्छा पेपर किया हो, इस एग्जाम में सक्सेस और फेलियर जो है वो मार्जिनल है. इसमें तो क्वेश्चन ऑफ इंटेलेक्ट आता ही नहीं है. अगर मेरा आधा मार्क्स कम, आधा मार्क्स ज्यादा, ये डिसाइड करेगा कि वेदर आई वुड बी इन द लिस्ट और नॉट. सो वुड इट बी इवन जस्ट टू से कि ये मेरी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज या कैपेसिटीज को डिफाइन करता है? नो, नॉट एट ऑल. कभी ऐसा नहीं हो सकता है. तो पहली बात, आप इस एग्जाम को अपना मेट्रिक ऑफ सक्सेस या फॉर दैट मैटर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को अपना मेट्रिक ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ना बनाए. बस अपना बेस्ट दे. मेक श्योर कि यू डू इट ऐसे कि आपको आगे चल के ये ना फील हो कभी भी कि मुझे कोई रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि रिग्रेट से जिंदगी देखो बहुत अजीब सी हो जाती है कि काश मैंने थोड़ी और मेहनत की होती. इफ यू आर श्योर दैट यू हैव गिवन इट योर ऑल, देन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ ऑलमाइटी. If it's meant for you, you'll get it. And Allah Ta'ala hard work कभी waste नहीं करता. Just persevere through, work hard and you'll be there. रख सकती है. इससे पहले यहाँ पे एसएसपी आई थी. आज जब घर जाओगी तो खाब देख लें, लेकिन खुले आंखों से. इन बहनों को सीधे देखो, इनको याद रखना. जब तक आप प्रेपरेशन में, जब भी आप थक जाओगी तो आप सोचना बस मेरे सामने वो लड़कियां जो थी, जब वो ऑफिसर बन सकती है, मैं क्यों नहीं. मेरे सामने जो एसएसपी आई थी, जब वो बन सकती है तो मैं क्यों नहीं. यही मोटिवेशन होती है. बस मन हुआ कि ये तो बता ही दूंगा. ठीक है, ये जो आप बोल रहे हैं ना, डिसअपॉइंटमेंट्स, मोटिवेशन एंड ऑल दैट, आई ऑलवेज कॉलेज डेज में ना जब पढ़ाई करता था तो कभी मन नहीं होता था पढ़ने का. तो एक शेर मुझे अक्सर याद आता था कि ज़ला में बहर में खोकर संभल जा, तड़प जा पीछ खा खा कर बदल जा, नहीं साहिल तेरी किस्मत में आ मौज, उभर कर जिस तरह चाहे निकल जा. I have a question. How to improve answer writing? And how much time is for one question to write the answer? वालेकुम अस्सलाम की है. बिकॉज मेरी जो नोट मेकिंग वाली चीज़ थी, आई हैड फोकस्ड वेरी मच ऑन इट. जो भी आप पढ़ रहे हो, ऑलवेज मेक योर ओन कंसाइज नोट्स फॉर इट. कहीं से भी आपको हर टॉपर यूपीएससी के फर्स्ट रैंक से लेके लास्ट रैंक तक के टॉपर्स के नोट्स कहीं पे भी मिलेंगे. ऑल ओवर द टेलीग्राम दे आर देयर, बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप आर्ट ऑफ नोट मेकिंग नहीं सीखेंगे, तब तक आंसर राइटिंग नहीं आएगी.
जो हम आंसर्स एग्जामिनेशन हॉल में लिखते हैं, दैट टाइम यू हैव टू वर्क ऑन अ डिफ़ॉल्ट मोड। उस वक्त आपको सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। वो जो प्रैक्टिस होती है वो 1 साल आपकी घर पे चल रही होनी चाहिए, और उस चीज़ के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज नोट मेकिंग। वंस यू नो हाउ टू मेक नोट्स, वही चीज़ आपको कॉपी आंसर राइटिंग में करनी है। देन देयर आर सम टॉपर्स कॉपीज, जिसको आप रेफरेंस की तौर पे देख सकते हो। काफ़ी टॉपर्स अपने आंसर्स शेयर करते हैं जो उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अपनी मेन स्टेज सीरीज के लिए लिखे होते हैं। अदर देन दैट काफ़ी वेबसाइट्स है जैसे IAS बाबा, इनसाइट्स हैं, वो कुछ जिस शेयर करते हैं आंसर्स की कि कैसे आंसर लिखना होता है। इम्प्रोवाइज ऑन इट, एंड आई टेल यू वन थिंग, हर एक इंसान की जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं वो डिफरेंट होती है। फॉर मी प्रीलिम्स इज अ थिंग, मुझे प्रीलिम्स पसंद नहीं है एंड मेंस इज माय फोर्थ एरिया। तो मेंस की जो आंसर राइटिंग है दैट वाज वेरी मच डेवलप्ड इन मी पहले से ही। आई हैड टू फोकस मोर ऑन प्रीलिम्स। थिंग्स माइट बी डिफरेंट फॉर माय कलीग्स, किसी का प्रीलिम्स जो है स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है, किसी का मेंस, किसी का कोई सब्जेक्ट, किसी का कोई सब्जेक्ट। द थिंग इज अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को देखिए एंड वर्क ऑन इट। ACD, Assistant Commissioner Development, Dr. P. Zada Farhar, to once again congratulate our respected civil servant and motivate our young minds. अभी तक ये मुझे लगता है आखिरी पड़ाव है इस जो ये प्रोग्राम है, और लास्ट में जो भी आता है उसके पास बहुत कम बचा होता है बोलने के लिए। तो आई एम लेफ्ट विद वेरी लिटिल कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये जो है, जो हमारे आज के स्टार्स है, जो हमारे अचीवर्स है, उन्होंने आपके साथ बात की, उन्होंने बता दिया आपकी उनकी स्ट्रेटजीज क्या है, क्या रही है, और आपको कैसे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। मैं ज़्यादा मुझे लगता है हूँ कि इनके लिए जो है मशाल राह बनूंगा, क्योंकि 10 साल 12 साल से मैं सर्विस में हूँ। तो लेकिन आपके लिए यही है। तो आपके लिए जो हमारे एस्पायरेंट्स हैं, आपके लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो स्टेज हमने इनको दे दिया। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा इनको, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ लिटिल फीट। ये to achieve, to secure a rank like 2, 5, 9 is a big thing, which is really a big thing. और तब जब आपका जो दायरा जो कंपटीशन का है, जो आपका मुहित जो कंपटीशन का है, वो इतना ज़्यादा है कि इसमें पूरे जम्मू एंड कश्मीर के बेस्ट ब्रेन्स, बेस्ट माइंड्स जो है इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। इसलिए a big round of applause for all these achievers. फिर बात आती है जो हमारे एस्पायरेंट्स। सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखें आप ज़्यादा इस प्रोग्राम से महजूज ना होइए। मैं इनको भी, अंदर हम बात कर रहे थे, इनको भी बता रहा था कि अगर आपकी जो कोशिश है, आपकी जो सही है, आपने सिविल सर्विस में इसलिए आना है कि जस्ट फॉर अ जॉब, फॉर अ मनी की, देन आई मस्ट से कि यू शुड से अ बिग नो टू दिस। अगर आपको सिविल सर्विस में इसलिए आना है कि आपने रियली सिविल सर्वेंट बनना है, आप देखें ना इसके रूट्स में जाइए, तो सबसे पहले आपका जो मुद्दा है, आपका जो सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, वो ये है कि मैंने सिविल सर्विसेज इसलिए करना है क्योंकि मैंने लोगों की जो है खिदमत करनी है और बेलूस खिदमत करनी है। जैसे नित्या मैम ने आपको बताया होगा कि कभी कभी क्या होता है कि मैं रात के 9 बजे भी जो ऑफिस से निकलता हूँ, मैं अपनी बात कहता हूँ, 9 बजे निकल के भी उसके बाद घर नहीं जा सकता। सैटरडे पुलवामा ने मुझे घेर लिया है, सैटरडे को घर जाते हैं, ठीक है, घर के हालात कैसे है वो दूसरी बात, ठीक है, क्योंकि वो सफ़र करते हैं ना मेरे बिना, लेकिन दैट
you have to keep in mind कि you are there for the people of पुलवामा। अभी अब मैं पुलवामा में हूँ, कहीं कभी श्रीनगर में होऊंगा, तो आपने ज़्यादा जो है तरजीह इस बात को देनी है कि आप you are there for the people, ठीक है। नहीं तो उससे बेटर है ऑप्शंस है ना, करियर ऑप्शंस आपके पास। स्टूडेंट प्रोफेसर्स हमारे सामने बैठे हैं, हाईली पेड, 10 से 4 बजे तक। 4 बजे के बाद कोई फोन भी करेगा तो गुस्से से उसको छोड़ेंगे नहीं, है नहीं, मैं जस्ट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि रात के 9 बजे आपकी कोई रिव्यू मीटिंग नहीं होगी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर जो हु आर इनटू दिस ना एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। तो बाकी जो टीचिंग स्टाफ है ये तो मुझे लगता है तो लिटरेटिव है एंड फॉर दैट मैटर बाकी इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, बाकी चीजें जो हमको थोड़ा सा जो हमें बिल्कुल अलग डिफरेंट बनाता है वो ये है कि आपकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, वो रहनी चाहिए क्योंकि आपने ये ऑप्ट खुद किया है। उसके बाद बारी आती है कि आप प्रेपरेशन कैसे करें। वो मुझे लगता है यहाँ पे इकरा ने, युसरा ने और बाकी जितने भी हमारे अचीवर्स हैं उन्होंने बहुत बखूबी बेहसन तरीके से आपको बता दिया कि कैसे आपने जो है इस एग्जाम को करना है। एक चीज जो मैं बताऊंगा, मैं एंट्रेंस की बात से स्टार्ट करूंगा कि एंट्रेंस में होता क्या है। एक्चुअली जो कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी इज अ बिग थिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हम क्या करते थे एंट्रेंस के लिए, हम स्टार्ट करते थे पढ़ना जी डॉक्टर बनना है तो हम डायमेंशन से स्टार्ट करते थे, जहाँ यहाँ पे फिजिक्स से स्टार्ट करते थे जी डायमेंशन पढ़ेंगे। डायमेंशन 10 दिन पढ़ लिए, उसके बाद उकता जाता था दिमाग, तो कहते थे नहीं जनाब हम अब नहीं पढ़ेंगे। 10-15 दिन का गैप लगता था, 15 दिन के बाद फिर से डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन और बाकी चीजें जो है वो कभी गुजरती नहीं थी आप मुझसे। आप समझ गए मेरी बात? तो ये है कि जो आपका कंसिस्टेंट रहना और नींद अच्छे से करना। मैं आज भी रात के 9 बजे 10 बजे आता हूँ यहाँ पे, आपके फिजिकल वेलबींग की बात चल रही थी, 10 बजे भी आते हैं। आज भी मैं जब तक 2 घंटे खेलूंगा नहीं तब तक अंदर नहीं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वैसा सिस्टम बना लिया है तो वो नहीं छोड़ना है आपने। आप सर्केडियन जो रिदम्स है, जो आपका स्लीप साइकिल है, वो आपको जो है डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको स्मूथ रखिए, आप इसको बिल्कुल नॉर्मल रखिए। दिस इज नॉट अ बिग थिंग, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। हो जाएगा, हमारा हुआ, मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ। आई वाज असिस्टेंट सर्जन, देन मैंने सोचा कि नहीं जी थोड़ा शिफ्ट करना है फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा हो गया एंड माय सब्जेक्ट्स वर लाइक पोल्स अपार्ट, वर्ल्ड्स अपार्ट। जो मैंने पढ़ा है, मैंने मैट्रिक तक उर्दू पढ़ी, लेकिन उर्दू के साथ इतना शगफ था, इतनी मोहब्बत थी कि मैंने कहा छोड़ो परे, जो होता है होने दो, मैं उर्दू ही लेता हूँ एज मेन सब्जेक्ट, और मैंने उर्दू में निकाला, ठीक है। लेकिन अब आपको कोई कहेगा कि जनाब डॉक्टर फारहत ने उर्दू में निकाला, आपको अखबार पढ़नी आती है तो उर्दू दे दो, ये अच्छा है, सिक्योरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कुछ और ले सकते हैं एज पर योर इंटरेस्ट। तो आपके टीचर्स माशाल्लाह बहुत ही काबिल, बहुत ही ज़हीन, बेस्ट ब्रेन्स हमारे कॉलेज में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं। सबसे बेस्ट ब्रेन्स आपकी लैब में मिलते हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं हैं, जो 2-2, 3-3 नहीं 4-4 दिन के बाद खाना खाते हैं। अभी इकरा ने शायद बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ये नहीं है, ये आपका जो है ये मेजरिंग वो टेप नहीं है कि ये मेजर करेगा कि ये सबसे बेस्ट ब्रेन्स है, इनका IQ सबसे बेस्ट है, फरहत का IQ सबसे बेस्ट है। नो, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन दीज एग्जाम्स एंड योर IQ, ठीक है। बेस्ट ब्रेन्स, बेस्ट स्टूडेंट्स रह गए हैं, इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए क्योंकि वो अलग तरह से, उनकी जो तकलीफ है वो अलग तरह से थी। जो आपके सामने बैठे हैं इसीलिए है, तो इसमें भी बहुत दिग्गज लोग बैठे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप KS और IAS के पीछे ही पढ़ें। अगर आपका इंटरेस्ट है और आप इसके लिए बने हैं और जो स्ट्रेटजीज हमारे अचीवर्स ने आपको बताई है उन पे अमल करेंगे और अपना एक जो है
आप एक सेट पैटर्न बनाएंगे अपना, तो यू विल गेट थ्रू, नॉट अ बिग डील। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर वजीज़ा और यहाँ की करियर काउंसलिंग जो सेल है उसके जो ऑफिसर्स हैं, इनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि दे एक्चुअली started these types of programs to inculcate that competence, that brilliance। और ये जो है ये एक सेट जो ये स्टेज आपके लिए बना है, it will help you immensely। और ये जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं, इससे पता चलता है, देखें कल ये जो सारे के सारे अचीवर्स थे, ये कल आपकी जगह बैठे थे। आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले ये आपकी जगह बैठे थे और आज ये यहाँ पे बैठे हैं। मैं आप में से जितने सारे फेसेस मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप यहाँ होंगे और वहाँ पे और ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। Dr. Farhad sir, for your inspiring words. As we come to the end of today's event, it's my honor to invite Ms. Wasima Hamid, convener, Career Counseling Cell of this college. Very good afternoon to all of you. As we conclude this insightful event, I would like to take a moment to express my heartfelt gratitude on behalf of the college and the Department of Information and PR Pulwama. First and foremost, I would like to extend a warm thanks to our distinguished guests and speakers. Dear speakers, your presence and valuable insight have truly enriched our understanding of the career landscape. We are incredibly grateful for the time and effort you dedicated to sharing your experiences with our students. I would like to express our sincere gratitude to our esteemed principal, Dr. Haris Azhar. We are thankful to him for his vision and commitment to work and its execution. A special mention goes to Ms. Wajiza, District Information Officer, and its team, and for collaborating this enlightening event with us. Thank you. A big thanks to College Organizing Committee and all the volunteers who worked diligently to ensure the success of this event, and we appreciate every bit of your effort. I want to thank all the participants for being here and engaging with us. Your enthusiasm and participation have made this event a success. We hope that you will carry the insights gained here into your career journeys. Thank you once again to everyone involved. Before we leave, I would like to request Ms. Wajiza and Dr. Farhad to come on the stage and appreciate our anchors. Just a mark of appreciation, we are going to produce certificates to them. Please. Mr. Mohsen Fayaz from semester 3rd and Ms. Farah Fayaz from semester 3rd. So please. Mohsin, very well done. Ms. Farah. Farah, my namesake. Farhat nahi hai. Thank you, audience. Thank you for your patience.